Hello everyone, welcome back to Infinity Classes. I'm Monica Malhotra, your mathematics educator. Today I am recording the part two of video of a chapter A Square and the Cube of Ganita Prakash class 8. If you have not seen the part 1, please go and have a look at part 1, then only switch to part 2, otherwise there will be so many doubts. And I hope that there were no doubts in the last class, part 1 basically. So let's start. So what we did in the last class, we did how to check whether a number is a perfect square or not. Okay. Few points that we have to remember: that if any number is ending with 2, 3, 7 and 8, then the number will not be a perfect square. It means अगर कोई नंबर है जिसकी यूनिट डिजिट या फिर वंस डिजिट 2, 3, 7 और 8 है, देन वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. बट अगर उसकी यूनिट डिजिट 1, 4, 0, 1, 4, 6 and 9 है, then it may or may not be a perfect square. And one more 5. It may or may not be means अगर ये डिजिट्स हैं तो वो perfect square या फिर square number हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. It is not confirm. इस केस में हमें चेक करना है, बट इस केस में हम डायरेक्टली बिना सॉल्व करे बता सकते हैं दैट इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. सो एंड इस केस में वी विल चेक, नीड टू चेक. ओके. एंड एक और पॉइंट हमने किया था कि that if any number has odd number of zeros, odd number means 3 zeros, 5 zeros, 1 zero, 7 zeros, 9 zeros, like this odd number of zeros हैं, then that number will not be a perfect square. Odd number of zeros, then that number will not be a perfect square. But अगर even है, in that case we have to check. Odd में हम डायरेक्टली कह सकते हैं it will not be a perfect square. In even we have to check whether it is or it is not. Okay. So now how to check? For suppose there is a number 25, हमें 25 check करना है कि perfect square है या नहीं. As you already know, 25 is a perfect square. So let's cross check. So first method is the subtracting the odd numbers pattern. आप odd numbers को subtract करते रहो like this. फर्स्ट मेथड इज 25. फर्स्ट ऑड नंबर क्या होता है? 1. सो सब्ट्रैक्ट कर दो 1. 25 माइनस 1 24. देन आप यहाँ पे 24 कॉपी करो, देन सब्ट्रैक्ट करो सेकेंड ऑड नंबर. सेकेंड ऑड नंबर क्या होता है? 3. 24 माइनस 3 21. देन 21 कॉपी करो, देन सब्ट्रैक्ट करो थर्ड ऑड नंबर. थर्ड ऑड नंबर इज 5. 21 minus 5 16. Then write down 16 over here. Then subtract करो fourth odd number. Fourth odd number होता है 7. 16 minus 9, 16 minus 7 is 9. Then 9 को यहाँ कॉपी करो. Then fifth odd number कौन सा होता है? 9. 9 minus 9 0. अगर आपका end में 0 आ जाता है, then it means it is a perfect square. And how to check of which number it is a perfect square? आप steps count करो. First step, second step, third step, फोर्थ स्टेप एंड लास्ट इज द फिफ्थ स्टेप. फिफ्थ स्टेप में आपका आंसर 0 आ रहा है. इट मीन्स 25 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 5. 5 का स्क्वायर करोगे तो आपके पास 25 आंसर आ जाएगा. नाउ लेट्स चेक फॉर 81. 81 सबसे पहले कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स. कॉन्जिक्यूटिव मीन्स वन आफ्टर द अदर. ओके. सो 81 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो. 81 माइनस 1 इज 80. सब्ट्रैक्ट 3. 80 को यहाँ पे कॉपी करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे 3. 80 माइनस 3 इज 77. Okay, then 77 minus 5 is 72. Then 72 minus 7 is 65. 65 minus 9 is 56. 56 minus 11 is 45. Okay, 45 minus 13. 45 minus 13 is 32. 32 minus 15. 32 minus 15 is 17. 17 minus 17 is 0. So आपका फाइनल आंसर 0 आ गया. इट मीन्स 81 इज अ परफेक्ट स्क्वायर और अ स्क्वायर नंबर. अब हम चेक करेंगे किस किस नंबर का ये परफेक्ट स्क्वायर होता है. सो लेट्स चेक. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9. सो 81 जो होता है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है 9 का. सो 9 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 81. Hope you are having no doubt. If you are having any doubt, please write down in the comment box. I will have a look at it.
ओके। नाउ अब मैं आपको एक नंबर और की हम प्रैक्टिस करेंगे विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, सो दैट आई कैन शो यू कि उसके उस केस में रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा। ओके, नाउ लेट्स ट्राई फॉर रैंडम नंबर 50। ओके, 50 में ट्राई करते हैं। इन एक्चुअल 50 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, सो लेट्स क्रॉस चेक। 50 माइनस 1, 49। 49 माइनस 3, 46। 46 माइनस 5, 41। 41 minus 7 is 34. 34 minus 9, 25. 25 minus 11. 25 minus 11, 14. 14 minus 13 is 1. And then you will copy 1. Minus 15 is minus 14. See, it is going in a negative. It is getting negative. So negative नहीं आना चाहिए, zero पे end होना चाहिए. It is not ending at zero. It means 50 is not a perfect square. Hope this method is clear to you, how to check whether a number is a perfect square or not. Okay. If there is any doubt, then please write down in the comments box. Okay, so let's proceed further. So this method is used to cross check. You can cross check till I think 196, that is 14 squared 196, but you cannot go further. It's a very lengthy method and it's a kind of basically hit and trial method, so you cannot do like this. So let's discuss the another method, how to check whether it's a perfect square or not. I think you already know what is prime factorization method, which we used to study in the fourth and the fifth standard. Prime factorization, that is LCM HCF, that prime factors कैसे निकालते हैं in LCM and HCF. Similar way हम इन नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे और हम चेक करेंगे कि अगर प्राइम फैक्टर्स में पेयर बनेंगे देन इट विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर, इफ प्राइम फैक्टर्स में पेयर नहीं बनेंगे देन इट विल नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर. Don't worry, I'm here to explain you. I was just telling you what we will be doing. Now wait for 5 to 10 minutes and everything will be clear to you. Okay? Now suppose आपके पास कोई नंबर है 16, आपको चेक करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं. सो हम इसके क्या करेंगे, हम इसके निकालेंगे प्राइम फैक्टर्स. सो प्राइम फैक्टर्स निकालो. 2, 2 एंड देन 8, 2 देन 4, 2 देन 2, 2 देन 1. सो आपने प्राइम फैक्टर्स निकाले. 16 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2. अब जब भी हमें स्क्वायर की बात होती है, स्क्वायर नंबर चेक करना है, परफेक्ट स्क्वायर चेक करना है, और वन थिंग स्क्वायर रूट, जो अभी हम नेक्स्ट 5 to 10 मिनट्स में करेंगे. ओके, स्क्वायर नंबर या परफेक्ट स्क्वायर जब भी चेक करना है तो सबसे पहले आप उस नंबर के सारे प्राइम फैक्टर्स निकालोगे. प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद आपको पेयरिंग करनी होती है टू टू की, एंड जो पेयरिंग होगी वो सेम नंबर की होगी. लाइक दिस, अगर फॉर सपोज देयर इज एनी नंबर 2, 3, 5 एंड 7, ये आपके प्राइम फैक्टर्स आए हैं, तो आप पेयरिंग 2 और 3 की नहीं कर सकते हो, 5 और 7 की नहीं कर सकते हो. 2 2 की पेयरिंग करनी है, और पेयरिंग में जो नंबर्स होने चाहिए वो सेम होने चाहिए, प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए वो सेम होने चाहिए. सो आपने पेयरिंग करो 2 2 की. आपने पेयरिंग कर ली. पेयर में से एक नंबर आउट आएगा, बाहर आएगा 2. इसमें से भी एक नंबर बाहर लो, 2. 2 × 2 is 4. सो दिस नंबर 16 इज द परफेक्ट स्क्वायर. अगर पेयरिंग हो गई एंड पेयरिंग के पास आपके पास कोई नंबर भी नहीं बचा जिसकी पेयरिंग नहीं हुई, सो इन दैट केस दैट नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर. एंड 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? 4 का. ओके, एनी डाउट? Hope there is no doubt till here. Now we will be moving to the next topic, that is square root. Okay. What is a square root? आपको चेक करना है स्क्वायर रूट क्या होता है. Just a minute. Okay. Square root. What is square root? See, if I ask 9 is a perfect square, yes or no? 9 is a perfect square. 9 कौन से नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास 9 आया? किस नंबर को आपने किस से मल्टीप्लाई किया? कौन सा से नंबर को आपने मल्टीप्लाई किया इट बाय इटसेल्फ सच दैट 9 आया? सो यू विल से मैम 3. 3 का स्क्वायर किया तो 9 आया. सो 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 3 होगा. किस नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास स्क्वायर
नंबर या फिर परफेक्ट स्क्वायर आता है, दैट नंबर इज कॉल्ड दी perfect that number is called the square root. Okay. For suppose square root, let me give you one more example. For suppose if you are building a, if you are building, if you are making a building, so building में जितनी blocks लगी, that is the perfect square is square number एक. Okay. And if you are making a building, and if you are making any building, for suppose if you are making this building, and इस building में जितना सारे blocks लगे, you said that मैम यहाँ पर 9 blocks लगे, ठीक है, 9 blocks लगे, एंड मैं पूछूं कि एक साइड में कितने ब्लॉक्स हैं, एक साइड लेंथ में कितने ब्लॉक्स हैं, यू विल से मैम 3. सो 3 इज द साइड लेंथ एंड दिस इज कॉल्ड द स्क्वायर रूट. 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है. हाउ वी यूज टू रिप्रेजेंट, सी, वाई स्क्वायर जो होता है एक्स के इक्वल होता है, दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर. एंड यहाँ पर हम y को क्या कहते हैं, y को हम बोलते हैं स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट of x. Okay, is there any doubt? See, now if I ask you कि 9 is equals to 3 square, is it fine? Is there any doubt? I think so, there is no doubt. But please remember one thing which I have not written before, because आप starting में confuse हो जाते. 9 जो है 3 का square करने से आता है, that is 3 times 3. But there is also one case, अगर हम -3 को -3 से multiply करें, -3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 9. यहाँ पे भी 9 आएगा. सो 9 जो होता है स्क्वायर रूट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्क्वायर रूट ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे छोटा सा 2. सो स्क्वायर रूट अगर 9 का निकालें तो 9 का जो स्क्वायर रूट होता है वो +-3 होता है. मीन्स +3 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है. स्क्वायर रूट कैन बी पॉजिटिव, स्क्वायर रूट कैन बी नेगेटिव. ओके, सो आपको दोनों केसेस लेके चलने होते हैं. नाउ सपोज आपको चेक करना है, फॉर सपोज देयर इज एनी नंबर 81, आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है. स्क्वायर रूट हम कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट हम ऐसे निकालते हैं और यहाँ पे लगाते हैं 2. सो स्क्वायर रूट निकालने के लिए आप इसके क्या निकालोगे, प्राइम फैक्टर्स. प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं 3, and it will be 27, 3, 9, 3, 3, 3, 1. Okay, so square root of 81 क्या आएगा, it's 3 times 3 times 3 times 3. आपको ये वाला साइन में लगाना बहुत जरूरी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ दिस साइन. ओके, अब जब भी स्क्वायर रूट का साइन हटता है, स्क्वायर रूट का साइन हटेगा और नंबर बाहर आएंगे, तो नंबर जो बाहर आएंगे वो दोनों केसेस में आएंगे, पॉजिटिव में भी नेगेटिव में भी. आपने यहाँ से हटाया तो एक आएगा प्लस माइनस, यहाँ इस पेयर में से एक 3 आएगा एंड इस पेयर में से भी एक 3 आएगा. सो +-9. स्क्वायर रूट ऑफ 81 क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 81 होता है +9 और -9. दैट इज square root of 81 can be +9, or square root of 81 can be -9. It can be any number. Is there any doubt in finding the square root? Let's do few more questions. Okay, let's check for 256. Okay, let's find the square root of 256. 2 times square root means ये छोटा सा 2 बनाओगे और ये वाला साइन लगाओगे. Let's check. 1, 2, 8, 2, 64, 2, 32, 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1. ओके, अब जो स्क्वायर रूट है सबसे पहले आप इनके फैक्टर्स लिखोगे. फैक्टर्स विल बी 2 टाइम्स 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 2. अब जब भी स्क्वायर रूट का साइन हटेगा, स्क्वायर रूट में सबसे पहले आप जो स्क्वायर रूट के अंदर नंबर्स हैं उनकी पेयरिंग करो, सेम नंबर की पेयरिंग करनी है. और स्क्वायर रूट का साइन हटेगा तो पेयर में से एक नंबर बाहर आएगा एंड साथ में पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन, क्योंकि इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव. सो आंसर विल बी 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2, which is 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16. Therefore, square root of 256 is equals to +-16. Is there any doubt in finding the square root of any number?
Hope so. There is no doubt. If there is any doubt, then please write down in the comment box. Okay, then let's move to the next question. Let's cross check for one more number. One more number, let us check 441. Okay, let's check for 441. You have to find the square root. Okay, square root of 441. See, 441. So, by which number it is divisible? Is it divisible by 3? Yes, it is divisible by 3. So, let's check 3, 1, 1, 4, 7. Okay. Let's check for another 3. That is 3. Is it divisible by 3? Yes. So check 4 and 9. Okay, then by 7, 7, 7, 1. So इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो स्क्वायर रूट के अंदर लिखोगे 3 टाइम्स 7 टाइम्स 7 और जब प्राइम फैक्टर से नंबर्स बाहर आएंगे तो वो किसकी फॉर्म में बाहर आएंगे पेयर्स की फॉर्म में बाहर आएंगे सो इट विल बी 3 टाइम्स 7 okay and साथ में पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन इट विल बी प्लस माइनस 3 7 जा 21 so square root of 441 is equals to plus minus 21. Is there any doubt? If there is any doubt then please write down in the comment box. Okay, then let's come to the figure it out. Okay, which of let's come to the figure it out. Question 1, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर आपको चेक करना है कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है सो फर्स्ट is not a perfect square. Why it is not a perfect square? Because the unit digit is 2. Whenever a number is ending with 2, it will not form a perfect square. It will never be a perfect square. Okay. Any doubt in first part? Let me write down the answer solution for the first part. 2032 is not a perfect square because its unit digit is 2 and whenever any number ends with 2 it do not whenever a number ends with 2 it do not form it does not form a perfect square. Any doubt in first part? Let's come to, if there is no doubt, then let's come to the second part, that is 2048. 2048 is also not a perfect square because its unit digit is 8. Whenever any number ends with 8, it will not form a perfect square. So 2048 is not a perfect square because its unit digit is 8 and whenever any number ends with 8 it does not form a perfect square. Okay, any doubt in second part? Let's come to third part. What's the third part? Third part is 1027. Same answer. It is 1027 is not a perfect square because its unit digit is 7 and whenever any number is ending with 7, it does not form a perfect square. If any student is directly seeing the part 2 of this video, they may have a doubt in question 1. So I will advise you to please have a look at part 1 because this concept I taught this concept in the last class, that is in the part 1. So please kindly have a look at it. Now let's come to the 1089. 1089, not a perfect square. You can write the statement by yourself. Okay? Write the statement by yourself. Fourth, 1089.
1089 may or may not be a perfect square. Really sorry. 1089 may or may not be a perfect square because it's ending with 9. So if any number is ending with 9, you cannot say it is a perfect square directly. In that case, you have to check. So let's cross check by, we cannot do by that subtracting the odd numbers method because it will be very lengthy. So let's do it by prime factorization method. 1089, this number is divisible by 3, so let's divide it. 363. Okay, then 3 1 2 1. Okay, then 1 to 1 by 11, and then 11, then 1. Okay, so prime factors are 3 3 and 11 11. So जब भी इसका आप निकालोगे, इसके पेयर से एक नंबर बाहर आएगा और यहाँ पे बाहर आएगा. सो कोई भी नंबर ऐसा नहीं बचा, कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं बचा which is not forming a pair. Every factor is forming a pair, so this number is a perfect square, and 1089 is a perfect square. ये perfect square है of 33. Okay. Any doubt in this question? Question 1. ओके, सो लेट्स कम टू क्वेश्चन टू. क्वेश्चन टू है. क्वेश्चन टू से पहले हम थोड़ा सा कंसेप्ट देखेंगे. आपको चेक करना है कि जो नंबर है उसको स्क्वायर निकालेंगे तो उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी. यूनिट डिजिट निकालने के लिए नो नीड टू डू द कंप्लीट कैलकुलेशन, दैट इज मल्टीप्लीकेशन पार्ट. हम डायरेक्टली सिर्फ यूनिट डिजिट बता सकते हैं. वी कैन नॉट टेल द टेंस और द हंड्रेड और द थाउजेंड वन, बट वी कैन टेल द यूनिट डिजिट डायरेक्टली. फॉर सपोज देयर इज एनी नंबर 16. 16 का स्क्वायर है. सो 16 के स्क्वायर में जो यूनिट डिजिट होगी, आप 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, तो 36 की यूनिट डिजिट क्या है 6. तो 16 के स्क्वायर में भी यूनिट डिजिट 6 होगी. ओके, सपोज नाउ नेक्स्ट नंबर इज 91 का स्क्वायर. 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, सो यूनिट डिजिट 1 होगी. 49 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81. 81 की यूनिट डिजिट 1, सो इसकी भी यूनिट डिजिट 1 होगी. लाइक 23 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9, तो इसकी यूनिट डिजिट भी 9. यू कैन नॉट टेल द टेंस और द हंड्रेड. आई एम अगेन सेइंग यू कैन नॉट टेल द टेंस और द हंड्रेड लाइक दिस. इसमें 81 है तो आप ये नहीं कह सकते कि मैम इसकी जो टेंस है वो 81 होगी. टेंस 81 नहीं होगी, सिर्फ यूनिट 1 होगी. टेंस 8 में नॉट भी हो सकती है, वो आप नहीं बता सकते डायरेक्टली. उसके लिए आपको कैलकुलेशन करनी है पड़ेगी. बट वंस डिजिट और द यूनिट डिजिट आप डायरेक्टली बता सकते हो. सो लेट्स कम टू द क्वेश्चन टू. क्वेश्चन टू, विच वन अमंग हैज लास्ट डिजिट 4. इसमें से आपको बतानी है किसकी लास्ट डिजिट 4 है. सो 64 स्क्वायर. ओके, लेट्स चेक. 64 square. 64 square. Let's write down the unit digit. Unit digit 4 square is 6. 4 square is 16. So unit digit will be 6. Now let's come to the second part, which is 108 square. 108 square. 8 square is 64. So unit digit is 4. Next, 292 square. 292 square. 2 square is 4. So unit digit 4. Last one, 36 square. 36 square. 6 square is 36. So unit digit will be 6. आपको बताना था इसमें किस किस की unit digit 4 है. The 108 square and 292 square has unit digit 4. 108 का square and जो 292 का square है, इनकी जो unit digit है वो 4 है. Okay. Is there any doubt in question 2? If there is any doubt, then please tell me. Okay, question 3 is important and little bit different as well. So let's do it. Given that 125 square is 15625, what is the value of 126 square? Okay. आपको गिवन है कि 125 का स्क्वायर जो होता है वो 15625 होता है, तो आपको बताना है 126 का स्क्वायर क्या होगा. ठीक है, इसमें से आपको ऑप्शंस गिवन हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. सो आपको इसमें बताना है. ओके, सो लेट्स डू इट. दिस इज लिटिल बिट डिफरेंट, सो प्लीज पे अटेंशन. ओके, 125 का स्क्वायर. 125 का स्क्वायर मींस 125 ऑड नंबर्स को ऐड करके आ रहा होगा. टोटल 125 ऑड नंबर्स लिए आपने, 1 से लेके जितने भी ऑड नंबर्स 125 आएंगे, टोटल 125 ऑड नंबर्स लिए उनको ऐड करा, 15625 आ गया.
सो 126 कैसे आएगा? वन, अच्छा, 126 का स्क्वायर क्या होगा? 126 का स्क्वायर होगा 1 + 2 + 1 + 3 + 5 ऐसे आप कितने ऐड करोगे? आप 126 ऑड नंबर्स को ऐड करोगे। ओके, अच्छा। और 125 का स्क्वायर कैसे आएगा? 125 का स्क्वायर आएगा 1 + 3 + 5 एंड सो ऑन। कितने ऑड नंबर्स को ऐड करोगे? 125 ऑड नंबर्स को। ओके, ओके, 125 ऑड नंबर्स का सम आप अच्छा देखो, 126 ऑड नंबर है और 125 ऑड नंबर्स का सम आपको गिवन है 15625। इफ हमें 126 ऑड नंबर निकालना है तो अगर हम 125 ऑड नंबर्स का सम जो है 15625, उसमें हम 126 ऑड नंबर ऐड कर दें। ओके, 126। आपको याद होगा कि कल हमने कंसेप्ट पढ़ा था, सपोज 1 + 3 + 5 + 7 है, ये कितने ऑड नंबर्स लिए आपने? 4। तो ये किसका स्क्वायर के सम के इक्वल होगा? 4 स्क्वायर, दैट इज 16 के इक्वल होगा। सिमिलरली आपने ऐसे 125 ऑड नंबर्स लिए, आपको 126 ऑड नंबर बताना है। ठीक है, जो वन ऑड नंबर बताओगे ना, ऑड नंबर कैसे बता सकते हो? अगर आप नोट करोगे, सो ये ऑड नंबर का एक पैटर्न है। अगर आपका ये, आप इसको ऐसे ले सकते हो 2n - 1, n को 1 रख दो, 2 × 1 = 2, 2 - 1, n को 2 रख दो, सेकेंड ऑड नंबर है। सेकेंड ऑड नंबर कैसे आएगा? 2 × 2, 4 - 1, देन थर्ड ऑड नंबर 2 × 3, 6 - 1। ओके, सो आप nth ऑड नंबर कैसे निकाल सकते हो? nth ऑड नंबर आता है आपका 2n - 1 से। ओके, 2n - 1 से। सो 2 टाइम्स आपको 126 ऑड नंबर निकालना है। आपको 125 ऑड नंबर्स का सम पता है, आपको 126 ऑड नंबर निकालना है और उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, सो हमारे पास 126 का स्क्वायर आ जाएगा, विच इज 2 टाइम्स 126 - 1, विच इज 6 × 2 = 12, 2 × 2 = 4 एंड 1, 5, 252 - 1, विच इज 251। ठीक है, सो 126 का स्क्वायर जो होगा वो होगा 125 के स्क्वायर में 126 और नंबर को ऐड करके आ जाएगा। यस और नो? सी, if there is any doubt, let me clear one more thing. Okay, ठीक है, देखो ना, आप होता है 1 + 3 + 5 + 7। ओके, ये 1 + 3 + 5 क्या है? 3 का स्क्वायर का सम है। 3 के स्क्वायर में अगर हम फोर्थ ऑड नंबर ऐड कर देंगे तो हमारे पास 4 का स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली 126 का स्क्वायर है, तो 125 के स्क्वायर में अगर हम 126 ऑड नंबर ऐड कर देंगे तो हमारे पास 126 का स्क्वायर आ जाएगा। 125 का स्क्वायर है आपके पास 15625। 126 ऑड नंबर आपने निकाला, विच इज 251, एंड दिस इज द आंसर। नो नीड टू सॉल्व बिकॉज ये एमसीक्यू है और ये क्वेश्चन में जो आंसर है, ऑप्शन है, वो इसकी फॉर्म में। सो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। इज देयर एनी डाउट? Hope so. There is no doubt. If still there is any doubt, please write down in the comments box. I will have a look at it. Now let's come to the question 4. Question 4 is find the length of the side of a square whose area is. आपको क्वेश्चन 4 में एरिया, लेट द एरिया गिवन है, आपको एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन है 441। व्हाट इज द यूनिट? लेट मी चेक। 441 मीटर स्क्वायर। ओके, 441 मीटर स्क्वायर आपसे पूछ रहे हैं, साइड की वैल्यू बता दो। लेट द साइड ऑफ अ स्क्वायर, आपने साइड ऑफ अ स्क्वायर को लेट कर लो। दिस इज द रफ वर्क, जस्ट टू एक्सप्लेन यू। ओके, लेट द साइड ऑफ अ स्क्वायर बी x मीटर। ओके, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 441 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 441। ओके, साइड स्क्वायर मींस अगर आपका ये स्क्वायर है, स्क्वायर उधर जाएगा तो आपको मैंने बताया था, जब भी स्क्वायर हटाते हैं, स्क्वायर हटा के दूसरी साइड निकालना है तो आप इसका क्या करोगे? स्क्वायर रूट करोगे 441 का। स्क्वायर रूट, जब भी स्क्वायर हटाओगे, प्लीज रिमेम्बर, जब भी आप स्क्वायर हटाओगे और स्क्वायर रूट लगाओगे तो प्लस माइनस आएगा साथ में। ठीक है, स्क्वायर हटा के स्क्वायर रूट, एक साइड स्क्वायर है, दूसरी साइड स्क्वायर हटा के दूसरी साइड स्क्वायर रूट लोगे तो प्लस माइनस आएगा। अब 441 के हमने अभी थोड़ी देर पहले
फैक्टर्स निकाले थे. लेट्स क्रॉस चेक फॉर 441 विच वॉज 21 3377. ओके. ओके, विच इज प्लस माइनस 3377. ओके, हमने यहाँ पे करे थे, लास्टली करे थे, तो अभी हम थोड़ी देर पहले करते हैं. आप फैक्टर्स नोट कर सकते हो. तो साइड विल बी प्लस माइनस 3 टाइम्स 7. पेयरिंग करोगे. साइड इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 21. साइड इज इक्वल्स टू, ओके, प्लस माइनस 21. इस केस में आप प्लस माइनस नहीं लिखोगे. इन जनरल आपको प्लस माइनस लिखना होता है, बट इस केस में आप प्लस माइनस नहीं लिखोगे बिकॉज दिस क्वेश्चन इज ऑफ द स्क्वायर साइड ऑफ अ स्क्वायर. दैट इज लेंथ की बात हो रही है, स्क्वायर की साइड की बात हो रही है, और साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती. सो आपको माइनस का केस रिजेक्ट करना पड़ेगा. अदरवाइज आप जब भी लोगे स्क्वायर से स्क्वायर रूट, स्क्वायर स्क्वायर हटा के स्क्वायर रूट लगाओगे तो हमेशा प्लस माइनस लोगे. बट क्वेश्चन में अगर लेंथ की बात हो रही है, डिस्टेंस की बात हो रही है, तो आपका नेगेटिव साइन नहीं आता, क्योंकि लेंथ एंड स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होती. देयरफॉर साइड ऑफ अ स्क्वायर is 21 meter. Is there any doubt? If there is any doubt, then please let me know. Let's do one more question. For suppose I am doing it इन अ रफ, सो प्रॉपर प्रेजेंटेशन नहीं है, बट सिर्फ आपको कैलकुलेशन पार्ट समझाने के लिए मैं डायरेक्टली कर रही हूँ. अगर एग्जाम में आएगा तो आपको प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ करनी है. एरिया स्क्वायर का एरिया गिवन है आपको 625 मीटर स्क्वायर. आपको इसकी साइड बतानी है. आपको पता है साइड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 625. ओके, साइड है, स्क्वायर हटेगा. स्क्वायर जब भी हटाओगे दूसरी साइड जो जाएगा वो स्क्वायर रूट जाएगा. एंड साइड की बात हो रही है तो आप प्लस माइनस नहीं लोगे, ओनली पॉजिटिव लोगे. नेगेटिव केस आप नहीं ले सकते. 625 का स्क्वायर रूट निकालते हैं. 625 का स्क्वायर रूट इज 5. 1 2 5 5 25 5 5 5 1. ओके, सो इट इज 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5. पेयरिंग करोगे. पेयरिंग करके नंबर बाहर लेकर आओगे. 5 टाइम्स 5, सो साइड आपकी आ गई. ओके, जब नंबर बाहर लेके आओगे तो स्क्वायर रूट का साइन नहीं आएगा, रियली सॉरी फॉर दैट. और साइड आपके पास आ गई 25 मीटर. देयरफॉर साइड ऑफ अ स्क्वायर is 25 meter. Hope so there is no doubt. If there is any doubt, then please let me know. I am there to help you out. Let's do one question which is on, this is the question mark on the page number 6 of your book. Okay. You have to find the 36 square. बताना है आपको क्या होगा if 35 square is 1225. Okay. So सबसे पहले इसमें सेम मेथड लगेगा, दिस वन जो हमने इस क्वेश्चन में किया था क्वेश्चन 3 में. ठीक है. जो 36 स्क्वायर होगा, वो 36 स्क्वायर जो होगा 35 स्क्वायर में 36 ऑड नंबर ऐड करना है. ओके. एंड 36 ऑड नंबर का फॉर्मूला होगा, मतलब ऑड नंबर निकालना है. एनथ ऑड नंबर जो होता है, याद रखना, एनथ ऑड नंबर जो होता है वो 2n-1 होता है. सो 36 ऑड नंबर निकालना है तो 2 इंटू 36 - 1. 2 इंटू 36 is 6 2s are 72 - 1 which is 71. सो एंड 36 का स्क्वायर क्या आएगा? 36 का स्क्वायर आएगा 35 का स्क्वायर प्लस 71. 36 स्क्वायर इज 1225 प्लस 71. ओके. एंड 36 का स्क्वायर विल बी 5 + 1 6, 7 + 2 9, 1296 which is the answer. Is there any doubt? If there is any doubt, then please let me know. Okay, then if there is no doubt, then let's wrap up and wind up. We will meet in the next class in the part 3, in which we will be doing question number 5, 6, 7, 8, and 9. Okay, we will be doing those questions. All the best and have a nice day. Bye bye. Thank you so much.